नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश रियाल। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से जो उत्तराखंड में है पर्यटक पहुँचते हैं और कॉर्बेट पार्क के दीदार के साथ ही यहाँ की जो टूरिज़्म है और यहाँ किस तरीके से टूरिज़्म रन किया जाता है और यहाँ पर किस तरीके से कार्य किए जाते हैं उसको सीखने के लिए भी देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एलेक्स, जो स्पेन से यहाँ पर 14 दिनों के लिए आए हैं भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए। कॉर्बेट पार्क में किस तरीके से टूरिज्म होता है, टूरिज्म गतिविधियां होती हैं उसको सीखने के लिए, और होम स्टे किस तरीके से रन किए जाते हैं उसको सीखने के लिए 14 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें, ये स्पैरो नेस्ट जो होम स्टे है जिसको पूरा परिवार, रमेश सुयाल जी जो वरिष्ठ नेचर गाइड यहाँ पर हैं, उनके वहाँ पर आए हुए हैं टेढ़ा में और ये सीखने के लिए। एलेक्स, वेलकम टू उत्तराखंड की आवाज़। Thank you very much. It's a pleasure to be here. Alex, from where you belong? So, well, I'm from Barcelona, from Spain. What is your purpose to came here? So, my purpose to come here is just to know about the culture, about the nature, to have the chance to go to one of the most important national parks in, actually, I would say, in the world, because it's where you can spot tigers. Alex, how long you are staying here? So, my plan is to stay for 2 weeks, 15 days, more or less. Alex, what you learn in these 2 days? Well, what I learned is the concept of running the tourism. It's very different than Spain, and actually I think from my point of view that it's much better because guests, they are with the families and they are working all together and they share experiences. They share also the nature, to the knowledge about the plants, the very good food. That is something that I would like to point out, and it's really nice. एलेक्स का कहना है कि स्पेन में जो टूरिज्म कारोबार होता है वहाँ के मुकाबले यहाँ का जो कारोबार है बहुत अलग है। और स्पेन ने अभी एलेक्स ने हमें एक बात और बताई। एलेक्स ने बताया कि यहाँ पर जो होम स्टे चलाते हैं वो बिल्कुल फैमिलियर होकर, क्योंकि रमेश सुयाल के पूरा परिवार इसमें होम स्टे में जुड़ा हुआ है और फैमिलियर तरीके से गेस्टों के साथ बातचीत वगैरह, उनको खाना परोसना। एलेक्स ने एक चीज़ और अभी करी, उन्हें फूड भी सर्व करा। एलेक्स, यू सर्व द फूड टू गेस्ट, हाउ यू फील दैट टाइम? Well, to be honest, I felt so happy because people, they were really kind to me and they were really nice. And yeah, it was really, really good to serve to people that they enjoy and they are happy. What was your intention that I should serve food to the guest? Well, I mean, it's just to do this exchange to help to Mr. Ramesh, that he's given me a lot of knowledge of the culture here, about the nature. And for me, it's a pleasure to help also in this house and see how Indian people in Uttarakhand, in this region, they live. That it's very interesting. Alex, what you learned while staying here in homestay, will you share it in your country? Yeah, when I come back to Spain, obviously, I'm gonna share with my family and with my friends the knowledge that I learned. And only in a short time, I learned so many small things. And yeah, I'm so happy. Let's see if I learn more. So you share in Spain that whole thing? Yeah, I will try to say to everyone because I think it's interesting. Alex, have you come here for 14 days? Yes, 14 days. I'm gonna stay here. Alex, will you return to your country after 14 days? No, in 14 days I'm gonna go to the south of India and then I'm gonna keep traveling to Sri Lanka, Malaysia, Indonesia. I'm gonna be traveling for 7 months, more or less. स्पेन से आए जो एलेक्स हैं वो 7 महीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और 14 दिन के लिए स्पैरो नेस्ट जो गेस्ट हाउस है, होम स्टे है टेढ़ा में, वहाँ पर आए हैं। और रमेश सुयाल के परिवार से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, बता रहे हैं उसको, ये स्प्रेड करेंगे, शेयर करेंगे स्पेन पर जाके। विच काइंड ऑफ टूरिज्म रन इन स्पेन? Well, in Spain, I think the concept is very different. I mean, it's one of the most visited countries, but unfortunately, we are losing the essence because you go to cities like Barcelona, and there are no people from Barcelona because there are a lot of tourism. Here is the big difference that you are sharing with the people, with the local people, with the family. They are cooking for you. They get the food from the plants. The family, they are all together. They are working to accomplish guests. And I think this concept is really important because you can see the culture and you can see how people live here. And I think it's the main purpose of tourism. So, Alex, you are enjoying here? You are enjoying? Of course, yes. I'm enjoying a lot. I mean, this place is like heaven. And Mr. Ramesh, he gave me the chance to stay with his lovely family, that they are really nice. They are really kind to me. And look, I mean, just look around. It's like a small heaven. You wake up and you see the nature, the whole nature here. And yeah, I'm enjoying a lot and in this peaceful place. Alex, how many members you are in your family? We are 5. Our brother, sister? Yeah, I have 2 brothers and my parents.
तो अभी एलेक्स हमारे साथ से जो स्पैरो नेस्ट जो होम स्टे है रमेश सुयाल जी का टेढ़ा में, वहाँ पर आए हुए हैं और 14 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को, होम स्टे को नियर से देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी एलेक्स ने बताया कि वहाँ पर जो होता है इस तरीके का टूरिज्म कारोबार चलता है कि आपको अगर आप होम स्टे लेते हैं तो वहाँ पर चाबी वगैरह आपको दी जाती है, वहाँ पर आपको केवल बनाना खुद होता है, वहाँ पर इस तरीके से फैमिलियर कुछ भी नहीं होता। उत्तराखंड में होम स्टे का कॉन्सेप्ट विदेशी पर्यटकों को भी पसंद आ रहा है। यही कारण है कि अब विदेशी बड़े बड़े होटलों को तरजीह न देकर उत्तराखंड के छोटे छोटे होम स्टे में रुक रहे हैं और गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति को समझ रहे हैं। यही नहीं, होम स्टे का ये कॉन्सेप्ट विदेशी पर्यटकों को इतना पसंद आ रहा है कि वो इसे अपने देश में भी लागू करना चाहते हैं। ऐसी एक ख्वाहिश 37 साल के विदेशी मेहमान एलेक्स भी रखते हैं, जो उत्तराखंड के होम स्टे से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। वहीं होम स्टे के संचालक रमेश सुयाल और उनकी पत्नी आशा सुयाल भी एलेक्स को उत्तराखंड के खाना पानी, संस्कृति और परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और होम स्टे के कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझा रहे हैं। होम स्टे मालिक रमेश सुयाल ने बताया कि एलेक्स उनके पास मेहमान बनकर आए थे, लेकिन अब वो यहाँ घर के एक सदस्य के तौर पर रह रहे हैं। एलेक्स होम स्टे में रुकने के साथ ही उनके साथ घर के काम भी करते हैं। एलेक्स जो है स्पेन से आए हैं और एक स्पेन के नागरिक हैं और जो पर्यटन के लिए उत्तर भारत में आए थे। और उत्तर भारत में जब आने से पहले उनको जानकारी मिली कि एक अलग तरीके का भी पर्यटन होता है जो यूरोप में कहीं नहीं है। यूरोप में मोस्टली B&B's कॉन्सेप्ट जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर आए तो उनको पता चला, यहाँ आने से पहले उन्होंने जब रिसर्च करी तो पता चला कि होम स्टे भी एक तरीके का एक पर्यटन है। बट होम स्टे पर्यटन ही नहीं है, होम स्टे एक तरीके का एक एक्सचेंज काइंड का कॉन्सेप्ट है। तो यूँ यहाँ पर आया तो उसने कहा मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग स्टे पर वो हमारे साथ यहाँ पर रह रहा है और साथ साथ तो हमारे साथ जो काम हमारे घर के होते हैं वो भी वो हमारे साथ करता है। और क्या है कि यहाँ पर की संस्कृति को जानना का और लोगों को जानने का उसका उद्देश्य है। पर्यटन जो है ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि पर्यटन का मतलब यही नहीं है कि आपने 4 हाथी, 4 भालू, 4 शेर देख लिया तो आपका पर्यटन हो गया। कॉर्बेट आज की तारीख में और होम स्टेज की ओर को जो लोग यहाँ पर आते हैं वो 99% लोग ऐसे हैं जो कि हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, चाहे वो भले ही भारतीय हों या विदेशी हों। तो काफ़ी समय हम लोग उनके लिए जो लोकल फूड है वो या लोकल जो संस्कृति है उन सब जगहों पर हम उनको लेके जाते हैं, उसको देखते हैं, जिसको करीब से महसूस कर पाते हैं। तो एलेक्स भी यही सब चीज़ें जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद है कि 14 दिन की इस जर्नी में हम उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ के बारे में वो सीखेंगे और ताकि वो इस सबको जाके वहाँ के लोगों के सामने रख सके कि भारत में ये भी इस तरीके का भी एक पर्यटन होता है। एलेक्स अभी जो है स्पैरो नेस्ट कॉर्बेट में रुके हुए हैं। ये एक होम स्टे है टेढ़ा गाँव में और वो जो है स्पेन नागरिक हैं और मेरा नाम रमेश सुयाल है। मैं इस होम स्टे का मालिक हूँ और जो इस रन का। वही रमेश सुयाल की पत्नी आशा सुयाल का कहना है कि उनका पूरा परिवार इस होम स्टे को चला रहा है। उनके होम स्टे में काफी विदेशी पर्यटक आते हैं। उनकी कोशिश है कि वो यहाँ आने वाले पर्यटकों को पहाड़ की संस्कृति, व्यंजन और परंपराओं से रूबरू कराएं। एलेक्स खुद कह रहे हैं कि होम स्टे में रहकर उन्हें पूरी फैमिली वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि होम स्टे में पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ उन्हें काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशा सुयाल है। मैं और मेरे हस्बैंड रमेश सुयाल यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं जिसका नाम स्पैरो नेस्ट है। ये स्पैरो नेस्ट हमारे किसी फॉरेनर क्लाइंट के नाम पर ही है। तो वो उनका नाम क्रिस्टोफर स्पैरो था। तो इतना ज़्यादा लगाव था उनका कॉर्बेट से, हमसे, तो हमने अपने घर का, अपने होम स्टे का नाम ही स्पैरो नेस्ट रख दिया। तो यहाँ पर हमारा जितना भी फॉरेनर गेस्ट आता है, मतलब कोशिश करते हैं हम कि अपना लोकल खाना, लोकल कल्चर, लोकल मतलब भाषा तो खैर नहीं सीख सकता हो, लेकिन जितनी भी यहाँ की सब्जियाँ वगैरह हैं जो हम घर में उगाते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी ले, कैसे बनाते हैं, कैसे यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर एलेक्स आए हुए हैं, तो हमारा वही रहता है कि हमारे बच्चे और हम मिलकर अपने पर्यटन के साथ साथ अपने लोकल के कल्चर को आगे बढ़ाएं, उन लोगों को बाहर जितना ज़्यादा पॉजिटिव संदेश भेज सकें। तो बस होम स्टे का मतलब भी यही है कि हम अपने
घर के माहौल को, अपने यहाँ की संस्कृति को लोगों के आगे पेश करें अच्छे से। एलेक्स ने बताया कि रामनगर दुनिया की अनोखी जगहों में से एक है जो बाघों के घनत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़ी व्यंजन का स्वाद लाजवाब है और तो और वो व्यंजन के बारे में जानने और उनके बनाने की प्रक्रिया सीखना भी होम स्टे में आए हैं। वहीं विदेश के कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए एलेक्स ने बताया कि यूरोप यानी कि स्पेन में बीएनबी यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट के कॉन्सेप्ट पर होम स्टे चलता है। का कोई जुड़ाव नहीं होता। वहां पर ट्रैवल वेबसाइट के जरिए यात्री बुकिंग करते हैं और फिर एक घर की चाबी मिल जाती है। ब्रेकफास्ट एक सिस्टम के जरिए पहुंचा दिया जाता है, फिर उसे खुद ही बनाना होता है। पर्यटकों को उस घर के ओनर का कभी पता नहीं चल पाता और ना ही उस जगह के बारे में जान पाते हैं। उत्तराखंड में होम स्टे कॉन्सेप्ट एलेक्स को बहुत अच्छा लगा, जहां होम स्टे में मालिक और उनके परिवार की पूरी भागीदारी रहती है और यहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड के होम स्टे में अगर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हो जाता है, यहाँ के लोगों से भी रूबरू हो जाता है और यहाँ के कल्चर के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इस जानकारी और अनुभव को एलेक्स अपने देश स्पेन लेकर जाना चाहते हैं और वहाँ भी ऐसा ही अनुभव पर्यटकों को देना चाहते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाओ। That seed is already there. We have put there, and it's getting dry.